Tell me the answer for homework sums. दो sums है ना? Easy थे. I think first or second, right? First and second. First का answer 15. Second का 15 और 16. Simple. All of you got this? Hello. Hello. Please check. Got it. All of you. Got it. Now, all of you take notes. अपना याद है आपको सिंगल एंट्री मैंने एक्सप्लेन किया था लास्ट लेक्चर. The last lecture I had explained single entry system. What is the definition of single entry actually? Is there any system like single entry system? No. Whenever the system diverts from double entry, we call it single entry. Whenever we divert from double entry, we call it single entry system. That's very simple. And for theoretical purpose, we classify the single entry system into 3 types. Do you remember the 3 types? Pure, simple and quasi. Pure में हम लोग क्या assume करते हैं? वो बंदा क्या maintain करता है? Personal and only personal. Sorry. Pure we assume he is maintaining only personal accounts. In simple we assume he is maintaining personal and cash bank account. And in quasi we assume he is maintaining personal cash bank and subsidiaries. Right? Out of that, what are we assuming in 11th standard? Simple one. कि बंदे ने पर्सनल और कैश बैंक तो मेंटेन किया है, पर्सनल और कैश बैंक तो मेंटेन किया है, सही बात. Then we saw how to tackle it, how to find out his profits and how to make his final account. So there are 2 tarika, 2 ways by which you can do it. What are those 2 ways? 2 methods of finding out the profits of a person who is maintaining the books under single entry. Conversion method and capital. That is net worth approach. Conversion approach and net worth approach. What do we do in conversion? Single को double में convert करना है. Every damn entry under single entry is converted into double entries and proper trading P&L and balance sheet. That is what is called as conversion method. नाम में लिखा है conversion. And what is net worth method? The net worth में we don't go by the trading P&L route to find out the profit. We go by which route? Capital route. So how many capitals do we require for that? 2 capitals. Opening capital and closing capital. 2 capital चाहिए अपने को. अच्छा, कैपिटल कहाँ से मिलेगा? एसेट्स एंड लायबिलिटीज. एसेट्स एंड लायबिलिटीज कैसे मिलेंगे? दिया होगा, लेकिन अगर आपको ढूंढना है प्रैक्टिकली तो कैसे करोगे? वो एक्यूरेट होता है कि अप्रोक्सीमेट? अप्रोक्सीमेट वैल्यूज ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज ढूंढ लो तो कैपिटल मिल जाएंगे. एक कैपिटल चाहिए कि 2? तो एक बनेगा ओपनिंग, एक बनेगा क्लोजिंग. उसको बैलेंस शीट बोलते हैं कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स. What is the difference between a balance sheet and a statement of affairs? Good observation. Now, what is the difference between a balance sheet and a statement of affairs? Balance sheet has got exact and accurate value. Statement of affairs में approximate values रहता है. Balance sheet has got accurate values. Statement of affairs got approximate values. Okay? Assumption based values. Not true and fair. Exact values नहीं आता. ठीक है? So approximate values मिलते हैं. That's why it's called statement of affairs. So you get 2 capitals. Once you get 2 capitals, you have drawings, you have additional capitals, you'll be able to get your profit, and you have to do some adjustments. Why have you do some adjustments? Because बंदे ने normal transaction नहीं किया तो adjustment करने का तो सवाल ही नहीं है. So adjustments में कुछ plus करना है, कुछ minus करना है. कुछ expenses वाले losses वाले minus हो जाएंगे, कुछ incomes वाले gains वाले plus हो जाएंगे. Is that clear? Hello. तो वो भी हमने देखा था, 4 एडजस्टमेंट्स किए थे हमने लास्ट लेक्चर में. एक नोट भी लिखवाया था ना मैंने आपको, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और एडजस्टमेंट्स. ऑल द एडजस्टमेंट्स आर डन ऑन क्लोजिंग वैल्यूज एक्सेप्ट फॉर इंटरेस्ट ऑन
capital which is taken on opening capital, right? आगे बढ़ते हैं. All of you take now sum number 6. 6th sum ध्यान से देखो सब लोग. Sum number 6. Look at sum number 6. अभी हर एक सम दो साइड पे करोगे तो बेटर रहेगा. लेफ्ट हैंड साइड पे स्टेटमेंट ऑफ असेट्स बनाना, राइट हैंड साइड पे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट बनाना. ठीक है. 6 का मुझे देख के बताओ. फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन relating to the business of Mehta, who keeps the books under single entry system. Mera, hello. You have been given the details, asset in profit and loss for the year. तो डिटेल्स में देखो आपको एसेट और लायबिलिटी की लिस्ट दिख रही है. एक लिस्ट है कि दो लिस्ट? सम नंबर 6. दो डेट्स का लिस्ट दिया है. 1/1/16 है, एक 1/4/16 है और एक 31st March 17 है. सो ओपनिंग एंड क्लोजिंग. सो ओपनिंग से क्या मिलेगा? ओपनिंग कैपिटल. और क्लोजिंग से क्या मिलेगा? क्लोजिंग. ये बात समझ में आ गई? Now once you have those two capitals, आगे बढ़ो. Mehta withdrew 3,000 during the year to meet his household expenses. What are those? Drawings. He also withdrew 2,000 from business bank account for daughter's college fees. That is also drawings. Machinery and furniture are to be depreciated by 10 and 5% respectively. That's adjustment. Plus or minus? Minus. वैसे तो दो इफेक्ट होता है एडजस्टमेंट का. एक प्लस माइनस, दूसरा एसेट्स में माइनस. तो यहाँ पे माइनस और एसेट में. एसेट वाला हम लोग इफेक्ट देने वाले वो रिवाइज बैलेंस शीट में बनता है. रिवाइज बैलेंस शीट आपको सिलेबस में प्रैक्टिकली बनता है. ठीक है, समझा? वो रिवाइज बैलेंस शीट में सारे एडजस्टमेंट्स भी दिखते हैं. यही बैलेंस शीट होता है बट विद एडजस्टमेंट. लेकिन हम लोग वो रिवाइज बैलेंस शीट बनाने वाले नहीं. Additions to plant and furniture are on 1/10/2016. Underline that. Additions to plant and furniture are on 1/10/2016. That is the only different part in the entire month. थोड़ा दिमाग लगाने वाली चीज है. Adjustment में काम आए. फिलहाल तो let us calculate the capitals first. So tell me how many statement of affairs should I make? 1 or 2? So just make 2 columns. Instead of 1, you make 2 columns. As liabilities 1/4/16, 31st March 17, and assets 1/4/16 and 31st March 17 in the books of Mehta. The statement of affairs as on. Statement of affairs as on. बोल. बंद. And the second part is statement of calculation of profit or loss for the year ended. Okay. Correct. Statement of calculation of profit or loss for the year ended. See. सबसे पहले क्या करना है, वो जो एसेट और लायबिलिटीज हैं उनको कॉपी करके लिख देना. तो ओपनिंग में ओपनिंग वाली लिखनी है, क्लोजिंग में क्लोजिंग. प्लांट एंड मशीन ओपनिंग में है आपका 10,000, क्लोजिंग में 20. 10 का 20 कैसे हो गया होगा? हाँ जी,
एडिशन मतलब और खरीदा होगा ना, समझ रहे आप? फर्नीचर 6 का 16 कैसे हो गया? फर्नीचर 6 का 16 कैसे हो गया? एडिशन। खरीदा है, कम हो रहा है तो बेचा होगा, बढ़ा है तो खरीदा है, राइट? स्टॉक हो गया, डेटर्स बिगिनिंग में थे आपके 4000, फिर साल भर खरीदा बेचा, पैसे लिए, एंड में हो गए 4.5। बैंक बैलेंस देखो ध्यान से, सीआर और डीआर दिया, तो व्हाट इज सीआर? यू नो, क्रेडिट का मतलब क्या होता है? ओवरड्राफ्ट होता है। तो 200 on credit and 1800 on debit asset. Then we have got creditors 5000 and 3500. Then you arrive at the capitals. 16, 27, 31 आ रहा है? हेलो, 31 आया, 51 300 आ रहा है यहाँ पे, प्लीज चेक, इज दैट राइट? 25 800 आ रहा है यहाँ पे, और ये 47 800 आ रहा है, प्लीज चेक। कैपिटल्स कैलकुलेट, ओपनिंग एंड क्लोजिंग, आर द अमाउंट्स राइट? चेक कर लो। मिल रहा है क्या? कैलकुलेट किया? आपको मत, रॉन्ग हुआ ना, ये रॉन्ग हुआ तो ये सारा रॉन्ग हो जाएगा, कोई पता भी नहीं चलेगा आंसर राइट है कि रॉन्ग। देख लो एक बार, ठीक है? बढ़े आगे। हेलो, करूं आगे का? चलिए, तो वेर वी करें, प्लीज फोकस। शुरू कहां से करना है? सीधे जाना, उल्टा जाना है? क्यों उल्टा जाने का पीछे रीजन याद है? हाँ, सीधे जाओगे ना तो नेगेटिव में आंसर आएगा, इट्स बेटर यू गो उल्टा, तो आंसर आपको पॉजिटिव आएगा। तो सीधा मतलब उल्टा मतलब वो याद है, फाइनल अकाउंट्स का इनर और आउटर कॉलम। फाइनल अकाउंट्स में ओपनिंग कैपिटल इनर में लिखते हो, फिर माइनस ड्रॉइंग, प्लस एडिशनल कैपिटल, प्लस नेट प्रॉफिट, तो आउटर। हम लोग आउटर से शुरू कर रहे हैं, आउटर मतलब क्लोजिंग से शुरू कर रहे हैं। हेलो, so we are starting with closing and gradually we will move to opening, ठीक है? चलिए, and profits thereby. So capital at the end, what is the amount of capital at the end? 47 800. Cool? ये एंडिंग का फाइनल कैपिटल है, आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट ऑल ड्रॉइंग्स, एडिशन, नेट प्रॉफिट सब करने के बाद फाइनल फिगर है ना, फाइनल फिगर इज 47 800, सीधा बैलेंस शीट से ढूंढा, ठीक है? ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर कितना है? ड्रॉइंग्स 2 + 3 5 है, so drawings during the year are 5000 less additional capital है कुछ उसने घर बार का चीज बेच के लाया है बिजनेस में, एनीथिंग? नथिंग, so make it nil. Less capital at the beginning, I think it is 25 800. So once you subtract this, you arrive at profits 68 600 before adjustments. 16 है 47 plus 52 800 minus 27,000, 27,000 का प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट। सही बात? Did you all understand? हेलो, जा रहे भेजे में, सीधा जाने के बदले उल्टा चीज किया, वही किया।
प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट क्यों? क्योंकि अभी तक इसमें एडजस्टमेंट करने बाकी। फाइनल अकाउंट में जो प्रॉफिट होता है वो आफ्टर एडजस्टमेंट, बट ये वाला बिफोर एडजस्टमेंट है। तरीका वही है, कैपिटल के डिफरेंस से ढूंढा, लेकिन है बिफोर एडजस्टमेंट कि बंदे ने अभी तक कोई एडजस्टमेंट किया नहीं। तो अभी हम लोग करेंगे। तो डेप्रीसिएशन एक ही चीज है, प्लस होगी कि माइनस? माइनस। तो पहला पार्ट डेप्रीसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीन। अब है ना, मैंने एक नोट दिया था आपको, अगर याद होगा लास्ट लेक्चर, इन द एब्सेंस ऑफ एनी इन्फो ऑल द एडजस्टमेंट्स आर डन ऑन विच वैल्यू? ओपनिंग और क्लोजिंग? क्लोजिंग, एक्सेप्ट फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो बिगिनिंग वाले पे होता है, बाकी सब क्लोजिंग वैल्यूज पे होता है ना। लास्ट लेक्चर में हमने कुछ एडजस्टमेंट किए थे, सब क्लोजिंग वैल्यूज पे ही है। प्लांट एंड मशीनरी का डेप्री, फर्नीचर का डेप्री, आरडीडी, एफपीडी, सब क्लोजिंग वैल्यूज इन द एब्सेंस ऑफ एनी इन्फो। बट इधर इन्फो दिया है, क्या दिया है? वो लास्ट लाइन अंडरलाइन किया हुआ पढ़ो। एडिशंस टू प्लांट एंड मशीनरी आर डन ऑन 11080। इसका मतलब कोई बता सकता है ये क्यों दिया? हाउ विल यू डू डेप्री ऑन प्लांट नाउ? आधे 6 महीने पे, आधे 1 साल। हाँ, तो कौन से वाले पे 6 महीना, कौन से वाले पे 1 साल? ओपनिंग 10 वाले पे कितना? 12। और एडिशन कितना हुआ? एडिशन का अमाउंट 5% of 10,000 for 6 months. डिड यू अंडरस्टैंड? 10 ओपनिंग था प्लस 10 हुआ तो 20 हुआ। 10 ओपनिंग था प्लस 10 खरीदा होगा साल के बीच में, तब जाके 20 हो गया। तो हाउ मच इज द एडिशन? 10,000. So there are basically two machines, one original machine of 10 and plus additional machine of 10. फर्नीचर में भी सेम है, ओरिजिनल कितने का है? 6 और एडिशन कितने का है? 10. तो ओरिजिनल वाले में हाउ मच डेप्रिसिएशन? 12 months और एडिशन वाले पे? समझ में आया? नहीं सर, 20,000 पे फुल ईयर तब करते जब कोई इन्फो ना होता एडिशंस का। इधर एडिशंस का इन्फो दिया है ना कि 110 को ऐड किया। फर्नीचर भी दिया, प्लांट एंड फर्नीचर मिला। वो इन्फो ना होता ना तो मैं किस पे करता पता है? सीधा दोनों 20 में फुल ईयर, मतलब मैं अज्यूम करता है कि एडिशंस आर ऑन फर्स्ट डे, एडिशंस आर हैपनिंग ऑन फर्स्ट डे, वो अजम्पशन है। अगर कोई इन्फो नहीं दिया है, इन्फो ना होता तो मैं चुपचाप 20 और 16 में फुल ईयर मार देता, कम करता। लेकिन इधर ऐसा नहीं कर सकते, तो इधर डेप्री ऑन प्लांट अलग अलग करना पड़ेगा। पहला 10,000 पे 10% फॉर फुल ईयर एंड दूसरा 10,000 जो एडिशन है उस पे 10% बट फॉर 6 months. So I think this is 1,000 and this is 500 I think. Is that right? 1,500 आ रहा है? मिला? Check. And the second one is depreciation on furniture. This is original 6,000 pay at the rate of 5% for full year, which is 300. और उस पे कितना एडिशन है? 10,000. समझा कहां से मिला मेरे को 10? anyone? Who did not understand? हेलो, गया भेजे में कि नहीं? एडिशन का लॉजिक समझा? 6 का 16 हुआ है ना तो 10 का एडिशन है, 10 का 20 हुआ है तो 10 का एडिशन है। व्हाट इफ 10 का 5 हो जाता, 5 का सेल हो जाता, ये परचेज एडिशन है, वो सेल होता। तो क्वेश्चन में दिया रहेगा सेल का डेट वगैरह, कुछ नहीं दिया है तो फिर सीधा क्लोजिंग पे मानना, अज्यूम करने का सारा परचेज सेल फर्स्ट डेट पे ही हो गया। इज दिस क्लियर? हेलो हेलो हेलो, गाड़ी कब कब का समझा कि नहीं? कूल, हेलो। तो सब टोटल निकालो, सब टोटल इज 2050, राइट? Correct or no? Now 27 minus 2050 is 24. 950. This is what?
net profit during the year. Net profits during the year. Net profits during the year. Is this clear? समझा ये वाला? Next sum number 7. Sum number 7 देख लो. पहले तो क्या करना है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाना है. एक की दो पढ़ो, एक ओपनिंग है क्लोजिंग, क्या मिलेगा वहां से? 7th. चलो ढूंढो सब लोग, कैपिटल खुद से ढूंढो फटाफट. सेम 2 days, 1 opening 1 closing. 7th sum का कैपिटल ढूंढ लो फटाफट. Try on your own. Come on, find out the capital of 7th sum. Come on guys. सर कितना सम करवाना? खड़ा खड़ा मत. Calculate the capital fast. कौन है ये in the books of Ram? कल कॉलेज में छुट्टी है ना? है ना? कॉलेज इज हॉलीडे टुमारो. टुमारो योर लेक्चर. कॉलेज में तो छुट्टी है ना? कल 7:15 की जगह थोड़ा लेट रखो.